बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, respected parents and students. We will continue our syllabus from where we left it due to COVID-19. So first, let's recall what we know about matrices. What is a matrix? A matrix is a recollection or formation of real numbers enclosed in a bracket, square bracket. For example, this is a matrix of a 3 by 3 order, 3 by 3. It has an order of 3 by 3. Let's name it. This is matrix A. So what is the order? So order is a number of rows into number of columns, which is m x n. Here m denotes number of rows and n denotes number of columns. So let's find out what is the order of this matrix A. Order of matrix A. Here let's count number of rows in matrix A. 1, 2, 3. So matrix A has 3 rows. 3. Now let's count number of columns in the matrix A. So this is a column number 1, column number 2. Now lastly we have column number 3. So putting it in formula, now we get order of a matrix A is 3x3, 3 into 3. Now we have other matrices, like type of matrices, equal matrices. For example, 1 2 2 1. Let's name it A. Another matrix B having same order and same entries. These are called entries. If both entries and order of the two matrices are equal, then both matrices are equal to each other. Now we have row matrix. What is a row matrix? A matrix which have only one row is a row matrix. This is a row matrix. Now let's see what is the column matrix. Column matrix.
कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम हो. फॉर एग्जांपल one column. So this is a column matrix. Now we have a null or zero matrix. So what is a null or zero matrix? A null or zero matrix is a matrix which all entries are zero. For example, this matrix, which is D. Let's name it D. So this is a null or zero matrix. Null or zero matrix. Okay, now we see we have other matrices like diagonal matrices. Let's wipe it out. Now we have a space here. Diagonal matrix. So what is a diagonal matrix? A matrix which have entries only on the diagonal and all other entries are zero. So this is a diagonal matrix. These diagonal entries may be same or they may be different. Now we have a scalar matrix. So what is a scalar matrix? A matrix. This is a type of diagonal matrix which have diagonal and all diagonal entries are same, like this one, 2, 2, 2. So this is a scalar matrix. Next we have a transpose identity matrix. Identity matrix is the same as this one, same as this one. So let's change the order of it so that we can differentiate what is the identity matrix. So let's take an example of a 2 by 2 matrix, order of a 2 by 2. अगर हमारे पास डायगोनल एंट्रीज 1 हैं और जो बाकी एंट्रीज हैं, अदर एंट्रीज वो 0 हैं, तो हमारे पास वो मैट्रिक्स क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. नाउ वी हैव अ ट्रांसपोज, यस ट्रांसपोज. लेट्स वाइप इट आउट so that we can write here. अब हम देखेंगे कि ट्रांसपोज क्या होता है. एक रिकॉल कर रहे हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना पेश आए आगे फर्दर चैप्टर सॉल्व करते हुए. So what is a transpose? Transpose is interchanging rows of a matrix into columns and columns of a matrix into rows. For example, let's take an example of a matrix A which have entries 3, 5, 7, 9. If we take transpose of this matrix A transpose 3, 7, 5, 9 transpose. Now let's take it. अब हमारा क्या होता है कि ट्रांसपोज क्या होता है कि इसको हमने रोज़ को हमने चेंज कर देना है कॉलम्स में और कॉलम्स को हमने चेंज कर देना है रोज़ में. अब हम क्या करेंगे 3, 7, 5, 9. तो ये हमने क्या ले लिया ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. अब हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.5 पे आते हैं. यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं. उससे पहले हमें कुछ कंसेप्ट्स देखने होंगे जैसे कि व्हाट इज़ डिटर्मिनेंट.
determinant of a matrix. Let's take an example of a matrix A which has entries 1, 3, 5, 8, bracket close. So this is a matrix A. Let's take determinant of matrix A. इसका हम determinant ले लेते हैं. तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं. अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो एंट्रीज है 1 और 8 मेन डायगोनल मैट्रिक्स एंट्रीज जो है, मेन डायगोनल एंट्रीज, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में 1 इंटू 8. अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, -3 इंटू 5. सॉल्व कर लेंगे. 1 इंटू 8, 1 8 सा 8, 8 1 ज़ा 8, 3 5 ज़ा 15. 15 में से 8 निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 7, और साइन बड़ी वैल्यू का -7. तो ये हमारे पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट. ये तो हमने एक एग्जांपल सॉल्व की. अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्या है. अब हमारे पास क्या आता है कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती हैं. व्हाट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल हम एक डिटर्मिनेंट लेते हैं और डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स. इफ A is a matrix and its determinant is equal 0, then it is said to be a singular matrix. सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब कि अगर हम A मैट्रिक्स है और उसका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं और वो 0 आ जाता है तो ये क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल हमारे पास बुक की एक एग्जांपल है, हम यहाँ पे कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल A मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 0 0, मैट्रिक्स क्लोज. इसका हम डिटरमिनेंट ले लेते हैं. अभी हम देख के आए कि डिटरमिनेंट कैसे लेते हैं. मेन एंट्रीज़ को, मेन डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में 1 इंटू 0, फिर हम माइनस लगाते हैं. नाउ वी विल मल्टीप्लाई द सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज, मतलब 2 इंटू 0, विच विल गिव अस 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 0 minus 0 will give us 0. So this matrix is a singular matrix. अब सेम हमारे पास एक और मैट्रिक्स होती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, वो मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट 0 ना हो. उसकी डेफिनेशन सेम है, बस इधर वो इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा. इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल हम b डिफ्रेंशिएशन के लिए, हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए b ले लेते हैं. मैट्रिक्स एंट्रीज हमारे पास हैं 1 1 0 2. अब हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे.
डिटर्मिनेंट, टेकिंग डिटर्मिनेंट विल गिव अस, हम मिड वाला ये वाला स्टेप स्किप करें ताकि हम जल्दी से एक्सरसाइज की तरफ जाएं। मल्टीप्लाई कराते हैं 1 × 2, डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। माइनस सेकेंडरी डायगोनल हमारे पास क्या है 1 × 0, multiplying 1 × 2 will give us 2 and 1 × 0 will give us 0, so 2 minus 0 is 2. So the determinant of a matrix B is 2. So this is not a singular matrix because it is not equals to 0. तो हमारे पास वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो वो क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट A is not equals to 0, which is this one. Now we'll see what is adjoint. Sorry, adjoint of a matrix. Adjoint क्या होता है हमारे पास? Adjoint हमारे पास होता है कि अगर सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3, 9, 7 और यहाँ पे हम देख लेते हैं 2। एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट हमारे पास ये होता है जो मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल एंट्रीज ये वाली, इनको हमने इंटरचेंज कर देना। इनको हमने क्या कर देना है? इंटरचेंज, मतलब 2 को हमने 3 की जगह लिख देना और 3 को हमने 2 की जगह लिख देना। ये हमारा पहला स्टेप ये है। 2 इधर आ गया, 3 इधर आ गया। अब क्या होगा, जो बाकी ये वाला डायगोनल है इसके साइन चेंज कर देना। मतलब अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर देना, अगर प्लस है तो माइनस। तो अभी यहाँ पे क्या है, प्लस, तो -9 + 7 will give us -7. So this is the adjoint A. ठीक है, रिकॉल कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट क्या होता है, हम डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं, विच विल गिव अस डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। और सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो, उसे क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। ये सिंगुलर मैट्रिक्स हमने एक एग्जाम्पल करके देख ली। अब हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, 0 के अलावा कुछ भी, 1, 2, 3, -1, -2, -3, वो क्या होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। फिर हमने देखा एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या हमारे पास होता है कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनको हमने इंटरचेंज कर देना, उनकी हमने जगह चेंज कर देनी है। 2 अगर हमारे पास इधर था तो हमने इसको ऊपर ले आना है और 3 को हमने 2 की जगह। और सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हमने इन दोनोላनों के साइन चेंज कर देने हैं, जो हमारे पास सेकेंडरी डायगोनल है इसके साइन चेंज कर देने हैं। अब हम जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है। एक्सरसाइज से पहले हम देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है। इन्वर्स बात कर लें, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो मैट्रिक्स का है इज A × A इन्वर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी। मतलब अगर हम A को A इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी विच इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की निशानी ये है कि अगर हमने पता लगाना हो कि ये दोनों मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं आपस में, तो उन दोनों को हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और अगर उनका आंसर एक इन्वर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो हमारे पास क्या होगा, वो आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। अब इन्वर्स कैसे निकालते हैं? इन्वर्स, A इन्वर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट A
डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या फॉर्मूला हमारे पास, ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इन्वर्स निकालने की एक कंडीशन है, अगर तो हमारे पास मैट्रिक्स सिंगुलर है, मतलब उसका डिटर्मिनेंट 0 है, तो हम उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हमारा इन्वर्स से पहले सॉल्व करने से पहले हमारा स्टेप यही होगा कि उसका डिटर्मिनेंट निकाल लें। अगर तो डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो इसका मतलब उसका इन्वर्स नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता, इन्वर्स भी उसका 0 होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम उसको आगे फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, उसका जॉइंट नहीं लेंगे। तो हमारे पास ये एक चेक पॉइंट होता है कि जहाँ पे हम देखते हैं कि इसका इन्वर्स आगे निकलता है फर्दर कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, पहले डिटर्मिनेंट लेते हैं। अगर तो डिटर्मिनेंट 0 है तो इसका मतलब वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर तो वो नॉन सिंगुलर है, फिर आगे हम फर्दर उसको एडजॉइंट लेंगे और सॉल्व करेंगे। अब हम एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट कर लेते हैं। Now we will start our exercise number 1.5. So first question is find the determinant of the following matrices. वो क्या कह रहे हैं कि आपने डिटर्मिनेंट निकालना है नीचे दिए गए मैट्रिसेस का। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज यहाँ पे हमारे पास कौन सी है, एक्सरसाइज नंबर 1.5, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। सो पार्ट 1 हमारे पास क्या है, a इक्वल्स टू -1 1 2 0। वो क्या कह रहे हैं, हमें डिटर्मिनेंट निकालना। तो हमने भी पीछे प्रीवियसली करके आए हैं कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। ए डिटर्मिनेंट 2 बार्स लगा दिए हमने, सेम इधर -1 2 1 0 क्लोज। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, डायगोनल एंट्रीज को, मेन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाइंग -1 बाय 0, देन एडिंग माइनस, मल्टीप्लाइंग सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज which are 1 and 2, 1 multiplied by 2. Now it will give us -1 को 0 से करेंगे, 0 आंसर आएगा, माइनस 2 into 1 will give us 2. A determinant and A determinant. Don't forget to add A determinant in each step. Now moving forward, it will give us the determinant of A matrix is equals to -2. तो इधर से हमने क्या कर लिया, इसको हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया। सेम बाकी पार्ट्स भी इसके सेम हैं, सिंपली हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, सिंपल, कोई इसमें हमारे पास डिफ़िकल्ट स्टेप नहीं है। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास एज अ MCQ भी आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पास एज अ MCQ आता है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट इसका 2 कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट, विच इज़ मैट्रिक्स B एंट्री 4 3 1 2 मैट्रिक्स क्लोज। इसमें हमारे से क्या पूछा हुआ है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। हमने क्या बताना है, क्या ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या फिर ये नॉन सिंगुलर है। सो लेट्स फाइंड आउट। फर्स्ट वी विल टेक अ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स B. नाउ टेकिंग डिटर्मिनेंट of a matrix B equals to
entries for 3, 1 and 2. So, further solving it, सेम जैसे हम प्रीवियसली करके आए हैं कि एंट्रीज को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। जो हमारे पास प्राइमरी डायगोनल होगी इसको हम क्या करेंगे, हमेशा पहले लिखेंगे 4 × 2। ये आपने ऑर्डर इसका नहीं बोलना, क्योंकि अगर इस ऑर्डर को हम चेंज कर देंगे तो हमारे पास आंसर चेंज हो जाएगा। माइनस सेकेंडरी डायगोनल विच आर सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज विच आर 1 and 3, मल्टीप्लाइंग 1 and 3। 4 × 8, 4 × 2 क्या होता है 8, माइनस 3 × 1 3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू 8 - 3 क्या होता है 5। 8 - 3 विल गिव अस 5। तो हमारे पास ये क्या आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया। तो अब उसने क्या कहा था हमें कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन सी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर। सो दिस मैट्रिक्स बी इज़ अ नॉन सिंगुलर। क्यों? क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं है। हैंस मैट्रिक्स बी, जो भी हमारे पास मैट्रिक्स का नेम है यहाँ पे मैट्रिक्स बी इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर। ठीक, अब हम आगे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। अब इफ इट एग्जिस्ट लिखने का उसका मकसद ये था कि अगर, जैसे हम प्रीवियसली स्टडी करके आ रहे हैं कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स सिंगुलर है, डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 है, तो उसका हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होगा, उसका इन्वर्स नहीं होगा। सो लेट्स फाइंड आउट। क्वेश्चन नंबर 3, we will do question number 3 part 1, which is matrix A, entries are -1, 2, 3 and 0, matrix loss। उसने हमसे क्या पूछा हुआ है कि हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। मतलब he is asking to find out A इन्वर्स। अब A इन्वर्स कि हमने क्या स्टडी किया था कि कंडीशन क्या है कि हमने पहले डिटर्मिनेंट ले लेना। अगर तो डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो सिंगुलर मैट्रिक्स है और उसका तो इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, पहले हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे। ये हमारा काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि अगर हमने एडजॉइंट ले लिया हमने पहले तो, और बाद में हमने उसका डिटर्मिनेंट ले लिया और वो सिंगुलर आ गई, तो हमारी तो मेहनत ज़ाया चले गई, हमारा टाइम भी वेस्ट हो गया, और पेपर्स में, बोर्ड में टाइम तो बहुत ज़्यादा कीमती होता है। सो लेट्स फाइंड आउट इज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। पहले फॉर्मूला भी लिख लेते हैं साइड पे, ताकि हमें याद रहे कि फॉर्मूला क्या है। सो ए इनवर्स इज एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ये हमने फॉर्मूला भी लिख लिया साइड पे। अच्छा, तो हमें क्या, हम क्या कर रहे हैं, अब ए डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। ए डिटर्मिनेंट प्राइमरी डायगोनल एंट्रीज को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, विच विल गिव अस -1 × 0 माइनस सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज विच आर 3 × 2। नाउ 1 × 0 will give us 0 minus 3 × 2 will give us 6. Moving forward, A determinant is equals to 6. अब तो हमें पता चल गया कि ये नॉन सिंगुलर है, hence its inverse exists. Now solving forward we have adjoint A। अब हमने क्या करना है, इसका adjoint निकाल लेना है। तो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि adjoint क्या होता है। adjoint होता है जो हमारे पास प्राइमरी डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी प्लेस चेंज करना, प्लेसमेंट चेंज कर देना, और सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर देना। नाउ टेकिंग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए
इसका स्टेप क्या होता है, पहले हम एडजॉइंट लिखते हैं मैट्रिक्स के साथ और सेम मैट्रिक्स में उतार लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको, और नेक्स्ट स्टेप में हम इसका एडजॉइंट ले लेते हैं। अब हम इसका एडजॉइंट लेंगे तो क्या बनेगा, प्राइमरी डायगोनल एंट्रीज की हम प्लेसमेंट चेंज कर देंगे, मतलब कि जगह चेंज कर देंगे, विच विल गिव अस 0 -1। इधर मैंने क्या किया, इसका एडजॉइंट लिया तो क्या हुआ, प्लेसमेंट चेंज होगी। और सेकंड स्टेप क्या होता है, जो सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज है इनके हम साइन चेंज कर देंगे, विच विल गिव अस -3 एंड -2। एडजॉइंट ए, ये हमने क्या किया, एडजॉइंट निकाल लिया। अब हमारे पास फॉर्मूला के लिए रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई। क्या रिक्वायरमेंट्स थी, एडजॉइंट निकालना और हमने डिटर्मिनेंट लेना। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इन्वर्स सॉल्व कर लेंगे, फॉर्मूला सॉल्व कर लेंगे। नाउ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है तो हम ए इन्वर्स लिखेंगे। डिटर्मिनेंट क्या है, -1/6। ये कैसे हुआ, हम पूरी डिटर्मिनेंट के नीचे 6 लिखने की पूरी मैट्रिक्स के नीचे 6 लिखने की बजाय अभी सेपरेट लिख लेते हैं। वो क्यों, आगे आपको इजी लगेगा। हमने क्या किया, -1/6 लिख लिया और हमने आगे एडजॉइंट लिख दिया, जो कि क्या है हमारे पास 0 -3 -2 -1। अब क्या करेंगे, जो -1/6 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे ईच एंट्री के साथ, विच विल गिव अस 0। इधर माइनस भी डाल देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। -3/-6 here, -2 divided by -6। Now likewise we have -1 divided by -6। ये क्या चीज़ है हमारे पास, इनवर्स। सॉल्व कर लेंगे अंदर, ये तो हमारे पास एंट्री 0 ही रहेगी फर्स्ट वाली, बिकॉज मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग समथिंग बाय 0 इज 0। माइनस से कट गया, अगेन माइनस से कैंसिल हो गया, here also। अब हमारे पास क्या रह गया, 3/6। तो ये क्या होता है, 3 1s are 3 2s are, so 1/2। Here we have 2 1s are 2 3s are, which will give us 1/3। Okay, now the last one is 1/6. So this is a multiplicative inverse of a matrix A. Now we have other parts are same like this one. Part 2, 3 and 4 are same as part 1. Okay, now moving forward we have a question number 4. अब हमसे वो क्या पूछ रहे हैं, उसने हमें बता दिया है कि एक मैट्रिक्स है A और एक मैट्रिक्स B है, और नीचे हमसे पूछ रहा है कि A एडजॉइंट A, ये भी वाइप कर लेते हैं, डिवीजन हमने वाइप कर ली। सो ही इज आस्किंग इफ, क्वेश्चन नंबर 4, इफ A equals to 1 through 4 6, so entries are 1 2 4 6, then proof part 1, A adjoint A equals to adjoint A into A, equals to determinant A
इंटू आइडेंटिटी। इसकी हम एक साइड सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्या करेंगे, हम ये वाली साइड ले लेते हैं, एडजॉइंट, ओहो सॉरी I skipped A in this question. Now it's corrected. Now we have A into A adjoint A equals to determinant A into identity. हम ये वाला साइड सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम ये वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली आपसे ये वाली भी हो जाएगी। तो ये वाला थोड़ा सा किसी को प्रॉब्लम ना हो तो हम ये वाला सॉल्व कर लेते हैं पोर्शन। लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास क्या है, हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए। तो एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू एडजॉइंट, पहले ब्रैकेट एंड मैट्रिक्स लिख लेते हैं और नेक्स्ट स्टेप में उसको सॉल्व कर लेंगे। एडजॉइंट ले लेते हैं। अभी हम प्रीवियसली करके आ रहे हैं कैसे एडजॉइंट लेते हैं, जो मेन एंट्रीज़ हैं उनको हम उनकी जगह चेंज कर लेते हैं और सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज़ के साइन, दिस इज एडजॉइंट ए। अब हम क्या करेंगे, उसने हमसे क्या पूछा हुआ है कि ए मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ए से, हम ये कर लेते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप इज ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए। आपने जो इनका प्लेसमेंट है, इनकी जगह वो ध्यान से रखनी है, आपने इनको मिक्स नहीं करना। मतलब पहले अगर ए है तो पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे, विच इज 1 2 4 6 मल्टीप्लाई बाय 6 -2 -4 एंड 1। समझ आ गया आपको यहाँ तक? हमने क्या किया, पहले एडजॉइंट ले लिया। एडजॉइंट के बाद जो हमारे पास ये पैटर्न था कि पहले ए था तो हमने वही मैट्रिक्स ए लिखी, फिर हमारे पास एडजॉइंट ए था, फिर हमने एडजॉइंट लिखा। या आपने ऑर्डर नहीं चेंज करना। Now moving forward we have multiplying a into multiply a by adjoint a। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका हमने क्या पढ़ा हुआ है, जो हमारे पास ये वाली एंट्रीज हैं इनको पहले इनसे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे करके देख लेते हैं, a इंटू एडजॉइंट a। जी 1 इंटू 6 2 इंटू -4 प्लस 2 इंटू -4, ये हमारा एक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ वाली इस कॉलम से कर देंगे, सेकंड कॉलम से। सो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम we have 1 into -2 1 into -2 plus 2 into 1। मूविंग फॉरवर्ड, अब जो हमारे पास सेकंड रो है ए मैट्रिक्स की, उसको हम फर्स्ट कॉलम से करेंगे, विच विल गिव अस 4 into 6 प्लस 6 into -4 6 into -4। Same goes for the second column, 4 into -2 plus 6 into 1। यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर लिया। सॉल्व कर लेंगे इनको, 6 6 1 6, 2 4 8, बट there is a -4
so it is minus 8. Here we have minus 2 into 1 will give us minus 2 plus 2 ones are 2 plus 2. Now 6 fours are 24 and 6 into minus 4 will give us the answer minus 24. Then we have 4 into minus 2 minus 8 plus 6 ones are 6, matrix clause. So this is A into adjoint A. Now solving it will give us 8 में से 6 निकालें तो हमारे पास क्या आता है 2, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का तो minus 2. ओके 24 into 24 minus 24, of course it will give us the answer 0. 2 minus 2 0. Again we have minus 8 plus 6 which will give us minus 2. अभी तक हमने क्या किया, इन दोनों के मल्टीप्लाई कर लिया ए और एडजॉइंट ए को, और हमारे पास आंसर क्या आ गया -2 0 0 -2. अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेंगे. राइट हैंड साइड, और वो क्या हमारे पास डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं. ए डिटर्मिनेंट 1, entries are 1 2 4 6. 1 into 6 minus 2 into 4. Again I'm telling you this, do not forget this order. हमेशा 1 जो हमारे पास डायगोनल है, प्राइमरी डायगोनल, वो एंट्रीज पहले मल्टीप्लाई होंगी, फिर माइनस आएगा, फिर सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज होंगी. 6 ones are 6, 2 fours are 8 and determinant is -2. ये डिटर्मिनेंट आ गया. अब उसने क्या कहा हुआ है कि डिटर्मिनेंट निकालें और उसे मल्टीप्लाई कर दें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर दें. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे जो ए है इसका ऑर्डर क्या है 2/2. अब हमने लेक्चर के स्टार्ट में पढ़ा कि ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, तो हमारे पास क्या है इसका ऑर्डर 2/2. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमारे पास 2/2 का होगा. सो विच इज़ 1 0 0 1. आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया हमारे पास. अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमारे पास क्या थी, डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स. डिटर्मिनेंट ए क्या है -2 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 1, विच विल गिव अस, अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2 into 1 -2 into 0 -2 into 0 -2 into 1. अगर हमने किसी भी जो हमारे पास एक रियल नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना हो मैट्रिक्स से, तो हर एंट्री से उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, विच विल गिव अस आंसर -2 0 0 -2. Hence proof left hand side is equals to right hand side. ये देखें हमारे पास जो ए एडजॉइंट ए था वो क्या था -2 0 0 -2, और इधर भी हमारे पास क्या आंसर आ रहा है -2 0 0 -2. ऐसे ही हमारे पास सेकंड पार्ट है, और सेम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है. इसमें हमने क्या करना है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर. अब ये कैसे हमें पता चलेगा, हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कराएंगे. अगर तो आंसर आइडेंटिटी आ रहा है तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे, वरना नहीं. तो हम ये करके देख लेते हैं. एक पार्ट इसका करके देख लेते हैं.
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि हमने बताना है कि ये दो जो मैट्रिक्स दी हुई हैं क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं कि नहीं। पहला पार्ट करके देख लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि आगे क्या क्या स्टेप्स हमने करने हैं और कैसे सॉल्व करना है। 3 4 5 7। Second matrix is 7 3 -5 and -4। नाउ अगर तो इन दो मैट्रिक्स का आंसर मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको, पहले इनको नेम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल ए इज अ मैट्रिक्स नंबर 1 एंड बी इज अ मैट्रिक्स नंबर 2। 7 -4 -5 3। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ए इंटू बी, ए मैट्रिक्स पहले मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स बी, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हम प्रीवियसली करके आ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। 3 पहले रो को पहली कॉलम से 3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -4। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से 4 × 7 प्लस 7 × -4। अगेन जो फर्स्ट रो है उसको सेकेंड कॉलम से 3 × -5 5 × 3 4 × -5 प्लस 7 × 3। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखते आते हैं कि 8 मल्टीप्लाई हो रहा है 20 है। 3 7 लेट्स क्लीन इट फर्स्ट। हाँ, अब क्या आएगा, 3 7 21 प्लस 5 4 20 और यहाँ पे -4 है तो -20। 3 5 3 × -5 will give us -15 plus 3 5 15। Again we have 7 4 28 and 7 × -4 will give us -28. Now here we have 4 × -5 is -20 plus 7 3s are 21। इधर हमने क्या किया, सिंपली मल्टीप्लाई जो हमने किया था उसको हमने सॉल्व कर लिया। आगे चलते हैं। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव हियर A multiply by B or you can just denote it with the dot matrix। 21 - 20 will give us 1। -15 और +15 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। +28 -28 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा 0। -20 और +21 मतलब 21 में से 20 निकाले तो क्या बच गया 1। मैट्रिक्स क्लोज। तो हमारे पास ये क्या बन गई है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है। सो is equals A multiplied by B is equals to identity matrix. Hence matrix A and B
are multiplicative inverse of each other। तो हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे हमारे पास क्या है? आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कह रहा है कि हमने वेरीफाई करना है इन्वर्स को। तो हम पहले इसको वाइप कर लेते हैं ताकि हमारे पास, क्योंकि अगला क्वेश्चन लेंथी होगा। तो चलिए आप यहाँ से इसको लिख लिए, मैं इधर वाइप कर लूँ। Now, buckle up students, this question will be a quite lengthy one. So we have question number 6. हम इसका पार्ट 1 करेंगे और पार्ट 2 इसका बिल्कुल सेम होगा, ठीक है? तो हम पहले क्या कर लेते हैं, पार्ट 1 कर लेते हैं। If A equals to, entries are 4 0 minus 1 2 4 0 minus 1 2, okay. Second matrix B equals to minus 4 minus 2 1 and minus 1. So this, and we have to prove A B whole inverse. It is whole inverse. There is a difference between A B inverse, A inverse and B inverse and whole inverse, and B inverse multiplied by A inverse. First, taking left hand side, we have to multiply both matrices. Let's multiply them first. A मैट्रिक्स हम पहले लिख लेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है कि हमने इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेना है और फिर उनका इन्वर्स लेना है। आपने ये ज़रूर ख्याल रखना है कि जो ये इन्वर्स है ये पूरा ए बी के ऊपर ब्रैकेट में है, ब्रैकेट के बाहर है। तो इसका मतलब पहले हमने ए बी मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका इन्वर्स लेना है, उस मैट्रिक्स का जो हमारे पास प्रोडक्ट में आएंगे। तो हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा लेते हैं बी मैट्रिक्स से, विच इज़ -4 -2 1 -1 ब्रैकेट क्लोज, मैट्रिक्स क्लोज। नाउ मल्टीप्लाइंग, अब मैं प्रीवियसली करा के हूँ तो मैं गो थ्रू नहीं करने वाला सिंपल स्टेप्स को, जल्दी हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी लेंथी होने वाला है। 0 into 1 4 into -2 plus 0 into -1. Now moving towards the row number 2, we have -1 into -4 plus 2 into 1. Okay, now likewise we have -1 into -2 plus 2 into -1, matrix close. Solving them, 4 into 4 16 and -16, okay, माइनस का साइन है, प्लस 0 तो नलीफाई होगा, 0 हो गया उसको हम नहीं लिखने वाले। अब 4 into -2 विल गिव अस -8, 0 into -1 नलीफाई हो गया उसको हम नहीं लिखेंगे। -1 into -4 विल गिव अस +4, +4 हमारे पास आ गया, और इधर से हमारे पास क्या आएगा, 2 into 1 इज इक्वल्स टू 2, इधर से 2 आ गया, इधर से हमारे पास +4 आ गया, तो 4 + 2 6, -1 into -2 विल गिव अस +2, और 2 जब माइनस होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +2 into -2 0, यहाँ हमारे पास 0 आ गया। एक बार इनको यहाँ पे लिख लेते हैं, a into b गो थ्रू कर लेते हैं, कोई मिस्टेक ना हो क्योंकि ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। 4 1 ओके, -1 into -4 2 into 1 ओके।
-1 into -2, 2 into -1. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हमने क्या करना है, इन्वर्स की हमारे पास कंडीशन होती है कि इन्वर्स के लिए हमने क्या करना है, एडजॉइंट निकाल लेना है और डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, पहला स्टेप डिटर्मिनेंट निकालना। नाउ वी विल टेक डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी विच इज -16 6 -8 0 डिटर्मिनेंट। तो हम क्या करते थे, पहले जो प्राइमरी मैट्रिक्स डायगोनल है उनकी एंट्रीज को मल्टीप्लाई कराते थे। सो -16 इंटू 0 -8 आ जाएगा और 6 सॉल्व करेंगे। 0 -6 8 48 -48 आ जाएगा क्योंकि -8 है, ये हो जाएगा +48। ए बी अब हम क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट निकालेंगे क्योंकि अब हमें पता चल गया कि ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट निकाल लेंगे। सो एडजॉइंट ए बी, मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ तो सीधा हम आ जाते हैं एडजॉइंट की तरफ, ताकि हमारे पास आगे राइट हैंड साइड के लिए ज़्यादा टाइम बच जाए। एडजॉइंट ले लेंगे इसका, एडजॉइंट हमारे पास आ जाएगा 0 -16 और इधर वाली एंट्रीज का साइन चेंज कर देंगे, एडजॉइंट आ गया। फॉर्मूला में पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ए बी होल इनवर्स का एडजॉइंट ए बी ओवर डिटर्मिनेंट ए बी। नाउ यहाँ पे हमारे पास 1/48 एडजॉइंट आ गया, 0 +8 -6 -16। ये हमारे पास क्या है, ए बी का होल इनवर्स। मूविंग फॉरवर्ड, वी विल मल्टीप्लाई इट इन द मैट्रिक्स 0/48 -6/48 8/48 -16/48 0 6 1 6 8 तो ये क्या आ जाएगा, -8, इधर क्या आएगा 8 1 8 6 oh sorry, here we have 1/8, 6 1 6 8 and here we have 1/6 and 16 divided by 48 we have 16 1s 16 3s -1/3। तो ये हमारा क्या आ गया, ए बी का होल इन्वर्स आ गया। एक बार हम चेक कर लेते हैं, इधर 0 आ जाए, इधर 1/6, इधर 1/8 1/3, ये हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड के लिए हमारे पास क्या है, बी इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स। तो हमारे पास चूँकि अभी अजान हो रही है तो मैं स्टेप करते रहता हूँ और जो स्टेप एसेंशियल होगा वो मैं आपको बता दूँगा।
जी, इधर हमने क्या किया, अब हमें पता है कि हमने बी इन्वर्स पहले निकालना है और ए इन्वर्स निकालना है, फिर उनको मल्टीप्लाई करना है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, मैंने जब तक अजान हो रही थी उतनी देर में डिटर्मिनेंट ले लिया। तो डिटर्मिनेंट हम पहले लेते आ रहे हैं, तो हमें इसमें कोई डिफ़िकल्टी पेश नहीं आएगी। तो सिंपली डिटर्मिनेंट ले लिया, बी डिटर्मिनेंट विच इज़ 6 और ए डिटर्मिनेंट 8। अब हम आगे चलते हैं, इधर से हम इसको वाइप कर लेते हैं। सिर्फ हम वो लिखा रहने देंगे ताकि हमें वेरीफाई करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट्स ले लेंगे। एडजॉइंट बी, सेम मैं स्टेप स्किप कर रहा हूँ और सिंपली आंसर की तरफ हम आ जाएंगे। तो एडजॉइंट क्या होगा इसका, इनकी जगह चेंज हो जाएगी। जो हमारे पास प्राइमरी डायगोनल है, सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज, ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट बी। तो हमारे पास बी इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट बी ओवर बी डिटर्मिनेंट विच इज़ 1 ओवर बी डिटर्मिनेंट। बी डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या था, 6, तो 1 ओवर 6 आ गया। 1 ओवर बी डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास, 6, 1 ओवर 6। एडजॉइंट आ गया हमारे पास +2 -4। सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, -1/6 +2/6 -1/6 -4/6। कटिंग कर लेते हैं, 2 1s are 2 3s are, और इधर क्या आएगा हमारे पास, 2 2s are 2 3s are। तो हमारे पास क्या बन गई, इन्वर्स क्या आ गया हमारे पास, -1/6 -1/6 1/3 एंड here we have -2/3। ये हमने क्या कर लिया, यहाँ पे बी इन्वर्स निकाल लिया। अब हम क्या निकालते हैं, ए इन्वर्स। इसको शिफ्ट कर लेते हैं डिवीजन को ताकि हमें प्रॉब्लम ना आए। उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, एडजॉइंट ए लिख लेंगे। सो हमारे पास ए ये है, तो इसका एडजॉइंट क्या होगा, इनकी जगह चेंज प्राइमरी डायगोनल्स की, तो 2 पहले आ जाएगा, 4 इधर, और इन डायगोनल्स सेकेंडरी डायगोनल जो एंट्रीज हैं इनके साइन चेंज, मतलब जो -1 था +1 हो गया और 0 का साइन चेंज नहीं होता, एडजॉइंट आ गया। अब इसका इन्वर्स ले लेंगे, ए इन्वर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या था, 8, तो 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 ओवर 8, 2 0 +1 4। नाउ 2/8 1/8 0 4/8। सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कर लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4 1/8 1/2 ए इनवर्स। अब हमारे पास बी इनवर्स भी आ गए और ए इनवर्स भी आ गया। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। बी इनवर्स हमारे पास क्या था, -1/6 -1/6 1/3 and -2/3, multiplying it with the A inverse which is 1/4 0 1/8 and 1/2। अब हम क्या करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। -1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/4 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/8।
इधर आ जाते हैं हम, हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/6 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1/3 इंटू मल्टीप्लाई बाय 1/2। सेम सेकेंड रो के लिए -1/6 इंटू 1/4 प्लस इधर माइनस आएगा हमारे पास, क्योंकि ये माइनस है, इसका ध्यान रखिएगा, अभी स्किप हो जाना था हमसे, 2/3 इंटू 1/8। अगेन सेम स्टेप हम इधर रिपीट करेंगे, -1/6 इंटू 0 -2/3 इंटू 1/2। इसको हम अब आगे सोल्व कर लेते हैं। इधर मैं सोल्व कर रहा हूँ ताकि हमारे पास राइट हैंड साइड मौजूद रहे, ठीक है। इसको मैं नहीं छेड़ा ताकि हमारे पास प्रूफ रहे कि हमने वेरीफाई किससे करना है। अब हम इसको क्या करते हैं, सिंपली सोल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, विच विल गिव अस -1, 6 4 ज़ा 24 प्लस 3 8 ज़ा 24। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 प्लस 1/3 इंटू 1/2 विच इज़ 1/6। इधर हम सोल्व करेंगे तो 6 4 ज़ा 24 -24 आ जाएगा, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 8 3 ज़ा 24 2/24। और हमारे पास इधर क्या आ गया, 0 -3 2 ज़ा 6, सो 2/6। सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 0 और हमारे पास इधर क्या आ गया, 0 1/6 वैसे का वैसे। इधर क्या हमारे पास आएगा, 3/24 -3/24। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, -2/6। मेरे पास चूँकि स्पेस का मसला है, सो मैं इधर आगे ही लिख रहा हूँ स्टेप। तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, 0 1/6, 3 1 ज़ा 3 8 ज़ा which will give us 1/8 and 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा -1/3. Hence, it's proof that left hand side is equals to right hand side. ये हमने इन्वर्स निकाला जो कि सेम हमारा इसके इक्वल था, लेफ्ट हैंड साइड के। हमारे पास जो पार्ट 2 है वो भी सेम इसी तरह ही है। और यहाँ पे हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।